गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल कंप्लीट की थी और उसके बाद हमने केमिकल प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हमने सबसे पहले की थी प्रॉपर्टीज़ इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, OH बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड विच इन्वॉल्व्स द एसिडिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल, व्हाई अल्कोहल्स आर एसिडिक, comparison of alcohols, acidic character of alcohols with water, and reactions involving acidic nature like reaction with sodium, reaction with carboxylic acids, acidification reaction जिसका मैकेनिज्म भी आपको बता दिया गया था। उसके बाद reaction with acid chlorides and benzoylation which is also called Schouten-Bowman reactions. Now today we will do reactions involving cleavage of CO bond. Reaction involving cleavage of CO bond. This bond is dissociated. As we know that carbon having partial positive charge, as CO bond is polar, there are some polarities on CO bond. So carbon CO bond is polar, so there is chance of attack of nucleophile on this carbon atom. There is chance of attack of nucleophile on the carbon atom and OH is released. लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्या है कि जो OH है पुअर लिविंग ग्रुप है, इट इज़ नॉट ए गुड लिविंग ग्रुप, पुअर लिविंग ग्रुप है। सो रिएक्शन थोड़ी डिफिकल्ट होती है, बट दिस रिएक्शन कैन बी मेक ईजी by protonation. If it is protonated, इसको प्रोटोनेशन कर दिया जाए प्रोटोन, then this H2O positive carbon per lone pair of electron and this lone pair of electron attack on the H ion and carbon OH group get protonated. Now this OH group H2O positive group, it is strong electron withdrawing group, it withdraw the electron pair and water is removed, water gets removed from this carbon and carbon acquires positive charge. Now at this positive charge nucleophile can easily attack, इस पर nucleophile बड़ी easily attack कर सकता है. So nucleophilic attack can take place on the carbon and OH group is removed. So now we will study these reactions in which this OH group is removed from the alcohols. Means carbon oxygen bond get dissociated, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिसोसिएशन टेक प्लेस, यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट हो वो रिएक्शंस हम करेंगे। तो इसमें वैसे मोस्टली आप रिएक्शंस एराइल एंड एल्काइल हैलाइड में कर चुके हैं। प्रिपरेशंस ऑफ एल्काइल हैलाइड विद एल्कोहल्स, रिएक्शन विद HX हमने की। अब ये सारी रिएक्शन आपकी रिपीटेड रिएक्शंस ही हैं। ROH प्लस HX, ROH प्लस HX produce RCl plus water where we require some catalyst. Now what is this catalyst? ये catalyst क्या होगा, ये हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर ऑफ द अल्काइल एंड एराइल हैलाइड हमने की थी, जिसमें हमारा इफ वी टेक HCl we take anhydrous zinc chloride and the product is RCl plus water. सॉरी माफ करना, ऊपर वाली रिएक्शन में हमने यहाँ HX लिया है, तो यहाँ पर भी हमारा RX आएगा। इफ वी टेक HBr, तो HBr के लिए हमें आपको बताया था कि HBr इज आल्सो प्रिपेयर्ड इन C2, विद इन रिएक्शन प्रिपेयर किया जाता है। एंड हेयर वी टेक H2SO4, concentrated H2SO4 as a catalyst and RBr plus water is produced.
Now HBr is produced mainly by HBr in presence of H2SO4. So KBr plus sulfuric acid, they react to produce HBr. That HBr then reacts with ROH to produce RBr. Similarly, reaction with HI in presence of phosphoric acid H3PO4, and this HI is also prepared in situ by treating KI/H2SO4. ये आपका ओ आएगा, या तो आप ऊपर H2SO4 लिख दो या फिर KBr/H2SO4 लिख दीजिए। डिटेल इसकी हम पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। सो RI प्लस वाटर, सो दीज आर द थ्री रिएक्शंस। ROH की reaction with HX. If we see the mechanism of this reaction, then ROH first get protonated to produce ROH H positive, because lone pair of electron is donated by oxygen atom to the H ion. Now here water is removed and produce R positive and water. Now this R positive is then attacked by X negative ion and produce RX. Since carbocation in this reaction, if you see, carbocation is a reaction intermediate. So the reactivity order will depend on the stability of carbocation, and hence the reactivity order will be equal to tertiary alcohol will react more than secondary, then primary, and then methyl alcohol. And this reactivity order is based on the stability of the carbocation. Stability order is tertiary is more stable than secondary, secondary is more stable than primary. Other reactions are reaction with PCl5. ये reaction भी आप complete कर चुके हैं in the first chapter. ROH plus PCl5, it will produce RCl plus POCl3 plus HCl. RCl plus POCl3 plus HCl. Reaction with PCl3 ROH plus PCl3, it will produce again RCl plus H3PO3 phosphorus acid. और डार्जन्स रिएक्शन ये भी आप पिछले चैप्टर में कर चुके हैं। ROH प्लस SOCl2, it will produce RCl plus SO2 प्लस HCl. और इसमें पिछले चैप्टर में हमने ये भी बताया था आपको कि दिस डार्जन्स रिएक्शन, द नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज डार्जन्स रिएक्शन. दिस डार्जन्स रिएक्शन इज favored as compared to PCl5 over PCl3 because all the two side product are gaseous and escape, and we get a pure RCl. So these are the reactions involving OH bond cleavage. तो सारी वही रिएक्शन जो आप एल्काइल हैलाइड में पढ़ चुके हैं. ROH plus HX produce RX plus water, ROH plus PCl5, ROH plus PCl3 and ROH plus SOCl2, in which OH group is substituted by Cl. तो रिएक्शन आप कंप्लीट ये पिछले चैप्टर में भी कर चुके हैं, यही है आपकी. नाउ नेक्स्ट जो हमारी आती है रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल ग्रुप एंड OH ग्रुप. तो इसमें आपकी बेसिकली तीन रिएक्शंस आती हैं: डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन. बेसिकली आपकी ये तीन रिएक्शन इसमें आती हैं: डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन. चलिए वन बाय वन लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल डिहाइड्रेशन, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन. डिहाइड्रेशन,
अब डिहाइड्रेशन का मतलब आप समझते ही हैं, डी मीन्स रिमूवल, हाइड्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ वाटर. Now these reactions can be done by heating alcohols with concentrated sulfuric acid. अब बेसिकली इसमें दो आपकी रिएक्शंस हैं, CH3 CH2OH when heated with concentrated H2SO4 temperature 443 Kelvin, 443 Kelvin. So it will produce CH2 double bond CH2 plus water. This is dehydration of alcohols to alkene. One more reaction is there, CH3 CH2OH 2 moles, means we take alcohol in excess with concentrated H2SO4 at temperature 413 Kelvin. तो यहाँ पर आपका दो डिफरेंसेस हैं, एक तो अल्कोहल एक्सेस में लिया गया है एंड द सेकंड इज टेम्परेचर कंडीशन इज डिफरेंट. दिस टाइम टेम्परेचर इज 413 Kelvin, वेयर एज इन द फर्स्ट रिएक्शन द टेम्परेचर वाज 443 Kelvin. ये टेम्परेचर कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है, किस कंडीशन में आपसे रिएक्शन पूछी गई है. नाउ द प्रोडक्ट विल बी CH3 CH2O CH2 CH3 plus water, means dehydration takes place in both the cases. Water is removed in both cases, but at temperature 443 Kelvin alkene is produced, and at temperature 413 Kelvin ether is produced. Now what are the mechanism of these reactions? Very important question है, बहुत पूछा जाता है, mechanism of these reactions. Now what are the mechanism? वन बाई वन लेते हैं दोनों रिएक्शंस के, और दोनों के मैकेनिज्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है. द फर्स्ट रिएक्शन इज, पहली रिएक्शन हमारी CH3 CH2OH with concentrated H2SO4 443 Kelvin. It produces CH2 double bond CH2 plus water. Give the mechanism of dehydration of alcohol to alkene. ये आपका क्वेश्चन आ जाता है. So what is the mechanism? Now mechanism of the reaction is, first of all, in presence of acid, protonation of alcohol takes place. This electron pair attack on the H ion and it will produce CH3 CH2OH H positive. काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना. Now this protonated alcohol will immediately remove water. It will immediately remove water and produce carbocation. This is carbocation. Now this carbocation will release H ion, this carbocation which is CH3 CH2 positive. अब इसको मैं थोड़ा सा डिफरेंट वे में लिख रहा हूँ. CH3 जो है इसको मैं यहाँ पर CH2 लिख के एक हाइड्रोजन यहाँ से दिखा रहा हूँ. नाउ दिस इलेक्ट्रोपेयर विल शिफ्ट हेयर एंड H ion is released and produce CH2 double bond CH2 plus H ion, and this is the H ion which act as catalyst. और आपको मालूम है कैटलिस्ट कभी भी रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होते. तो जो H ion हमने शुरू में यूज़ किया था, it is again released. Now it will combine with another alcohol and again release water. So dehydration will take place. This is mechanism of the first reaction at temperature 443 Kelvin. Now second reaction is CH3 CH2OH. This time we take alcohol in excess and H2SO4
concentrated temperature this time is 413 Kelvin. Now this time the product is ether and water is released. क्वेश्चन आ सकता है इस पे कि गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस ईथर। पीछे वाले रिएक्शन में क्वेश्चन था हमारा गिव द मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल टू प्रोड्यूस एल्कीन। नाउ दिस टाइम मैकेनिज्म फॉर द रिएक्शन फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स टू ईथर। अब इसमें मैकेनिज्म आपका क्या होगा? फर्स्ट स्टेप यहाँ पर भी सेम यही है, कार्बोकेटाइन बनेगा जैसे कि आपके पहले वाले रिएक्शन में आया था। क्या था उसमें? प्रोटोनेशन होता है पहले CH3 CH2OH plus H ion. The protonation will take place CH3 CH2OH H positive and then water is removed, produce CH3 CH2 positive and water. Now this carbocation in the last case it release H ion and produce alkene, but this time before it release H ion another alcohol molecule, there are two alcohol molecules. This time we have CH3 CH2 positive. Before it release alcohol हम लेते C2H5OH, before it release H ion, जैसा कि पिछली रिएक्शन में हमारा हुआ था। पिछली रिएक्शन में क्या था हमारा कि इसने इलेक्ट्रॉन पे यहाँ शिफ्ट कर दिया था और डबल बॉन्ड बन गया था। लेकिन इस बार क्या होगा, इससे पहले कि ये अपना H ion रिलीज करे, this alcohol molecule, another alcohol molecule, it will attacks on the carbon atom. एक और alcohol molecule, we have taken two water molecules, alcohol molecules, 2 moles of alcohol in this reaction. आप देख सकते हैं इस रिएक्शन में हमने 2 मोल अल्कोहल के लिए हैं। तो जो दूसरा मोलिक्यूल है it will attack on the carbocation and will produce protonated ether CH3 CH2O CH2 CH3 H पॉजिटिव। ये आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाता है अल्कोहल पर, ऑक्सीजन पे। नाउ दिस प्रोटोनेटेड ईथर विल रिलीज H ion CH3 CH2O CH2 CH3 and it will produce minus H ion and produce ether. So this is the difference of the mechanism. In the first case, as the carbocation produce the same molecule from the alpha carbon atom, H ion is released and produce alkene. But in the second case, as the carbocation is produced, before it release H ion from the alpha carbon atom, another alcohol molecule will attack on the methyl carbocation and produce ether. So this is the mechanism of these two reactions, and both the reactions are very important. Dehydration of alcohol to produce alkene, dehydration of alcohol to produce alkene, or dehydration of alcohol to produce ether. And the difference is due to the difference in temperature. If the temperature is higher for 43 Kelvin, then alkene, and if the temperature is lower for 13 Kelvin, then ether. Mechanism of both the reactions, mechanism of both of the reactions are very important. लगभग हर साल इनमें से एक मैकेनिज्म आपका पूछा जाता है. So this is dehydration of alcohol. Dehydration of alcohol is also done by another method. Second method of dehydration by passing over Al2O3 at higher temperature है, heated. अब क्या टेम्परेचर होगा उसके बिहाव पर हमारे प्रोडक्ट भी डिफरेंट होते हैं. जैसे कि CH3 CH2OH, this is your alcohol. Now if this alcohol is passed over heated temperature
टेम्परेचर कंडीशंस यहाँ पर फिर आपकी दो अलग अलग आ जाती हैं, CH3 CH2OH, both the cases it is passed over aluminum oxide. In both cases it is passed over aluminum oxide. Aluminum oxide means Al2O3. But there is a difference of temperature. Here the temperature will be 635 to 650 Kelvin, whereas in the first case the temperature is low. Low temperature means your temperature is 520, sorry, it will be 520 to 525 Kelvin. ये टेम्परेचर का यहाँ पर फिर से आपका डिफरेंस आ जाता है. If there is difference in temperature, then again product will be different. Lower temperature है, it will produce ether CH3 CH2O CH2 CH3 plus water. Again there will be 2 moles of alcohol. And if the temperature is higher, then again alkene plus water. तो वही डिफरेंस यहाँ पर भी है आपका. हायर टेम्परेचर अगर होगा तो एल्कीन, लोअर टेम्परेचर अगर होगा तो ईथर. तो दो डिफरेंट प्रोडक्ट यहाँ पर भी है, एल्कीन और ईथर, और दो डिफरेंट प्रोडक्ट हमारे इन रिएक्शंस में भी थे, एल्कीन और ईथर. लोअर टेम्परेचर पे ईथर, हायर पे एल्कीन. यहाँ पर भी सेम केसेस हैं. अगर टेम्परेचर लोअर है मीन्स 520 टू 525 केल्विन है तो ईथर, और टेम्परेचर हायर है 635 टू 650 है, देन इट इज़ एल्कीन. तो ये आपके दोनों रिएक्शंस हैं, आपको ध्यान रखनी है. तो दिस इज अबाउट डिहाइड्रेशन. सेकंड अब इसके अंदर है डिहाइड्रोजनेशन. दो तरह की रिएक्शंस आपको बताई थी. रिएक्शन इन्वॉल्विंग बोथ अल्काइल एंड OH ग्रुप. तो डिहाइड्रेशन, नाउ दिस इज आवर डिहाइड्रेशन विच वी हैव डन. रिमूवल ऑफ वाटर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में या कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से. लोअर टेम्परेचर पे ईथर, हायर टेम्परेचर पे एल्कीन. नाउ लेट अस टेक डिहाइड्रोजनेशन. अब डिहाइड्रोजनेशन का मतलब हो गया रिमूवल ऑफ वाटर. डिहाइड्रोजनेशन सेकंड जो है हमारे इसमें डिहाइड्रोजनेशन आपकी. नाउ इट इज डन बाय, एक तो इसका मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, and it is done by passing vapors over at copper at 573 Kelvin. Now what will be the product? The product will be, if you have primary alcohol CH3 CH2OH, primary alcohol when passed over copper at 573 Kelvin, hydrogen will be removed and it will produce CH3 CHO plus hydrogen. Aldehyde will be produced. If we take secondary alcohol, when passed over copper at 573 Kelvin, then it will produce ketone. तो डिहाइड्रोजनेशन है when passed over copper at 573 Kelvin, primary alcohol produce aldehyde and secondary alcohol produce ketone. Now what about tertiary alcohol? If it is tertiary alcohol, then noted that in case of tertiary alcohol dehydrogenation does not take place. In such cases dehydration take place. कॉपर एट 573 से पास किया, लेकिन अब डिहाइड्रोजनेशन नहीं, डिहाइड्रेशन होगा. और डिहाइड्रेशन कैसे होगा आपका, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 प्लस वाटर. वाटर का रिमूवल होगा ना कि हाइड्रोजन का. ये आपको नोट कर लेना है. मीन्स डिहाइड्रोजनेशन जो है टर्सरी के केस में नहीं होगी, प्राइमरी और सेकेंडरी के केस में होगी. प्राइमरी के केस में एल्डिहाइड बनेगा और सेकेंडरी केस में कीटोन. और अगर टर्सरी है तो डिहाइड्रेशन होगा ना कि डिहाइड्रोजनेशन, एंड एल्कीन विल प्रोड्यूस्ड. अब यहाँ पर डिहाइड्रेशन में सेट्स-जेफ रूल आपका लगेगा, जो कि हमने, अगर यहाँ पर भी हमने सिमेट्रिकल अल्कोहल लिया है, इथेनॉल लिया है, अगर हम अनसिमेट्रिकल अल्कोहल लेते हैं तो जो OH और हाइड्रोजन का जो रिमूवल होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू
सेट-जेफ रूल। डिहाइड्रेशन में ये ध्यान रखना, जैसे हमने डिहाइड्रो हैलोजिनेशन किया था इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पर भी हमारा सेट-जेफ रूल से ही डिहाइड्रेशन होता है। अगर आपकी रिएक्शन इस तरह से CH3 CH2 OH CH3, इसमें अगर आप डिहाइड्रेशन करते हो H2SO4 कंसनट्रेटेड 443 केल्विन, 443 केल्विन, तो जो आपका डिहाइड्रेशन होगा OH तो इस कार्बन से आपका रिलीज होगा ही होगा, लेकिन जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो आपका सेट-जेफ रूल के अकॉर्डिंग फ्रॉम दोज कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। नाउ दिस कार्बन हैज 2 हाइड्रोजन whereas this has 3, तो हाइड्रोजन विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दिस कार्बन एटम बिकॉज इट हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो OH इस कार्बन से आपका और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन जिस पर हाइड्रोजन कम है, तो जो आपका प्रोडक्ट बनेगा इसमें इट विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3 प्लस वाटर बनेगा। वो आपका सेट-जेफ रूल से होता है डिहाइड्रेशन में, चाहे वो आपकी यहाँ से डिहाइड्रेशन हो कोऑपरेट 573 केल्विन या यहाँ से डिहाइड्रेशन हो। तो सेट-जेफ रूल हम पिछले चैप्टर में कर ही चुके हैं। सो दिस इज डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोजनेशन एंड द लास्ट इज ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, थर्ड वन। इसके बाद हमारा एल्कोहल कंप्लीट हो जाता है, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन वैसे एल्कोहल का हमने आपको बताया था कि प्राइमरी एल्कोहल इज ऑक्सीडाइज, इट विल प्रोड्यूस एल्डिहाइड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम। एक फ्लो चार्ट हमने बनवाया था आपको, एल्डिहाइड बड़ी आसानी से आगे ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एंड प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड विद सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम, हियर आल्सो सेम नंबर ऑफ कार्बन। अगर यहाँ पर आपके n कार्बन एटम है तो यहाँ पर भी n कार्बन होंगे, यहाँ भी n कार्बन होंगे। इफ वी टेक सेकेंडरी अल्कोहल, देन सेकेंडरी अल्कोहल प्रोड्यूस कीटोन विद, if there are n carbon atom, the n carbon atom will be in ketone also, and if ketone is further oxidized, it will produce again carboxylic acid and carbon atom will be less than n. Now number of carbon atom decreases. And if we have tertiary with n carbon atom, then it will also produce ketone with less than n, let it will equal to x, n से कम होंगे, it will contain x carbon atom, ketone with x number of carbon atom where x will be less than n, पहले से कम हो जाएंगे। and if ketone is again oxidized, produce again carboxylic acid, now it will have less than x, अब x से भी कम कार्बन एटम हो जाएंगे, लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो ये हम आपको पहले डिटेल में बता चुके हैं। बाकी ये आपका क्या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, देखिए जरा, एल्डिहाइड्स या प्राइमरी अल्कोहल CH3 CH2OH, यू कैन यूज KMnO4 here in acidic medium, K2Cr2O7 in acidic medium, KMnO4 in बेसिक मीडियम में भी यूज़ कर सकते हैं हम in OH। So it will oxidize alcohol to aldehyde, but this aldehyde will again get oxidized in presence of such a strong oxidizing agents। ये फिर से इसको ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देंगे। सपोज वी वांट टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू एल्डिहाइड, हम एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइडिक स्टेज तक ही ऑक्सीडाइज करना चाहते हैं, आगे ऑक्सीडाइज नहीं करना चाहते हैं। देन व्हाट शुड बी द रिएजेंट यूज्ड टू ऑक्सीडाइज एल्कोहल टू एल्डिहाइड। पहले तो हम डिहाइड्रेशन बता ही चुके हैं, एल्कोहल्स को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए कन्वर्जन में हमारा यही मेथड होता है, कोऑपरेट 573 कर दीजिए, एल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एल्डिहाइड आपके ऑक्सीडाइज नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। इन केस में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है तो वो एकदम उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा। लेकिन अगर यहाँ ऑक्सीडेशन करके आपको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है और एल्डिहाइडिक स्टेज पर ही रोकनी है रिएक्शन, तो जो आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे, दिस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी PCC pyridinium chlorochromate, it will be pyridinium chlorochromate।
C5H5NH पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, CrO3 पाइरीडीन क्लोरोक्रोमेट, या फिर PDC इट इज पाइरीडीनियम डाइक्रोमेट मीन्स C5H5NH पॉजिटिव ट्वाइस Cr2 डाइक्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आप पढ़ चुके, पोटेशियम डाइक्रोमेट, Cr2 नेगेटिव डाइक्रोमेट होता है। या फिर आप यूज कीजिए बॉइलिंग एल्कोहल। बॉइलिंग एल्कोहल अगर आप लोगे तो जैसे एल्डिहाइड बनेगा इट विल एस्केप एंड विल प्रिवेंट इट्स ऑक्सीडेशन टू कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इन तीनों में से कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो एल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज करने के लिए। प्राइमरी एल्कोहल अगर आपका है CH3CH2OH, अगर आपने यूज किया है PCC या PDC, if you are using PCC or PDC, then it will convert into aldehyde only and not in alcohol. ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसका होता है। या फिर यू कैन यूज आल्सो बॉइलिंग एल्कोहल। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड से ज़्यादा होता है, तो जिस टेम्परेचर पर अगर आप बॉइलिंग एल्कोहल लेते हो तो उस टेम्परेचर पर आपका एल्डिहाइड प्रोड्यूस होते ही इवोपरेट हो जाएगा, एस्केप हो जाएगा, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वो एल्डिहाइड को आगे ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो ये आपका ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड। सेकेंडरी अगर लेते हैं, सेकेंडरी CH3CHOH ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल में सेकेंडरी एल्कोहल अगर लेते हैं हम, सो इट विल फर्स्ट ऑक्सीडाइज बाई, अब ऑक्सीडेशन इसका भी वही आपका, यू कैन ऑक्सीडाइज इट बाई KMnO4 इन एसिडिक और बेसिक मीडियम, या K2Cr2O7 कैन आल्सो बी टेकन इन एसिडिक मीडियम। सो इट विल आल्सो ऑक्सीडाइज alcohol to ketone. It will oxidize alcohols to ketone. Now ketone cannot be easily oxidized, but if ketone is oxidized, अगर हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते हैं लाइक HNO3 हमने ले लिया, तो कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कर देगा आगे, एंड इट विल प्रोड्यूस CH3COH प्लस CO2 एंड वाटर, मीन्स इट विल अंडरगोज क्लीवेज ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड adjacent to the carbonyl carbon, and it will produce CO2 water, and this will produce इथेनोइक एसिड। बेसिकली दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही प्रोड्यूस होते हैं, बट फॉर्मिक एसिड इज अनस्टेबल। अगर हम यहाँ पर यही रिएक्शन ले एसीटोन की CH3COCH3, अगर इसका ऑक्सीडेशन किया जाता है देन इट विल प्रोड्यूस CH3COH, 2 carbon carboxylic acid and 1 carbon carboxylic acid, it is HCOH. This formic acid is unstable and immediately decomposed to CO2 and water. The final product is ethanoic acid, CO2 and water. Another example, let us take CH3CH2 COCH3 कीटोन्स के लिए मैं कर रहा हूँ। सेकेंडरी एल्कोहल लेते हैं, तो अगर हमने ब्यूटेन 2 लिया तो इट विल प्रोड्यूस ब्यूटेन नॉन। नाउ इट्स फर्दर ऑक्सीडेशन, इट मे गिव अस टू प्रोडक्ट्स, देयर चांसेस ऑफ द टू, वन क्लीवेज फ्रॉम दिस साइड, इट विल प्रोड्यूस प्रोपेनोइक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, और फॉर्मिक एसिड फिर आपको CO2 वाटर बना लेगा, तो इट विल प्रोड्यूस CH3CH2 COH एंड CO2 एंड वाटर। ये भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, या फिर प्रोडक्ट आपका CH3 दूसरा जो क्लीवेज है उसकी पॉसिबिलिटी आपकी यहाँ से है। अगर क्लीवेज यहाँ से होता है तो इट विल प्रोड्यूस CH3COH, 2 carbon carboxylic acid, ethanoic acid, and it is also 2 carbon carboxylic acid, means ethanoic acid. So 2 moles of ethanoic acid is produced. Then what is the right product, this one or this one?
So this is explained on the basis of Popoff's rule. Popoff's rule. The right answer is this one. The reason is Popoff's rule. एक तो Popoff's rule जो है वो मिथाइल कीटोन्स के लिए एप्लीकेबल है. मिथाइल कीटोन्स मीन्स जो ये चीज़ आपकी है CH3CO, उसके लिए Popoff's rule. Popoff's rule. और Popoff's rule क्या है? जो CO ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप will remain with smaller alkyl group if oxidation of ketone takes place. If oxidation of unsymmetrical ketone takes place, then carbonyl group remains with smaller alkyl group. तो जो CO ग्रुप है, जैसे कि अभी एग्जांपल हमने लिया था CH3 CH2 CO CH3. नाउ इसका अगर ऑक्सीडेशन होता है तो जैसे कि हमारे पास हमने बताया कि दो चांस है, एक मिथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, और द सेकंड इज इथेनोइक एसिड एंड इथेनोइक एसिड. तो पोपोफ्स रूल कहता है कि जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है, कार्बोनिल ग्रुप इज दिस वन. दिस कार्बोनिल ग्रुप विल रिमेन्स विद स्मॉलर अल्काइल ग्रुप. अब जो स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा, हमारा मिथाइल एक तरफ, दूसरी तरफ इथाइल है, तो इट विल रिमेन्स विद मिथाइल. सो यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा एंड इट विल प्रोड्यूस इथेनोइक एंड इथेनोइक एसिड. दिस इज पोपोफ्स रूल. अगर अनसिमेट्रिकल कीटोन का ऑक्सीडेशन करना है तो कीटोन के ऑक्सीडेशन में फिर आपकी यही चीज़ डिटेल्स में आनी है. तो प्राइमरी सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो गया. टर्शरी का और देख लेते हैं. CH3 OH CH2 CH3. इसका अगर ऑक्सीडेशन करते हैं, पहले बनाता है कीटोन विद लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, एंड इट्स ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन अगेन विल प्रोड्यूस CH3. कीटोन का भी हमने किया ही है, CO2 एंड वाटर कार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम. तो कहाँ हमने स्टार्टिंग की थी, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल से, जिसमें हमारे 4 कार्बन एटम थे. एसीटोन बना 3 का और उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड बना 2 कार्बन का. तो इसमें भी ध्यान रखना, एक्चुअल में होता क्या है कि टर्शरी अल्कोहल का पहले होता है डिहाइड्रेशन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3. दिस इज आल्सो जस्ट अ मिनट, दिस इज आल्सो CH3. तो पहले डिहाइड्रेशन होता है और उसका जो अल्कीन बनता है उसका ऑक्सीडेशन होकर कीटोन बनता है, एंड देन इट विल प्रोड्यूस अगेन ऑन फर्दर ऑक्सीडेशन कार्बोक्सिलिक एसिड. सो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल. तो एल्कोहल में जो इन्वॉल्विंग बोथ एल्काइल ग्रुप एज वेल एज OH ग्रुप, तीनों को अगर दोनों को इन्वॉल्व करने वाली जो रिएक्शंस हैं वो हमारी 3 रिएक्शंस हैं, डिहाइड्रोजनेशन एंड ऑक्सीडेशन. सो डिहाइड्रेशन कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से 443 केल्विन पर अल्कीन, 413 पर ईथर. दोनों का मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है. डिहाइड्रोजनेशन को कॉपर 573 के ऊपर से पास करनी है, हाइड्रोजन रिमूव होगी, एल्डिहाइड या कीटोन बनेगा प्राइमरी और सेकेंडरी में रिस्पेक्टिवली. ऑक्सीडेशन अगेन एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड्स. एल्डिहाइडिक स्टेज पर अगर रोकना है प्राइमरी अल्कोहल में तो PCC PDC या बॉइलिंग अल्कोहल. तो ये हमारा अल्कोहल पोर्शन आज कंप्लीट है. इसमें थोड़ा सा रह गया डिस्टिंग्विश टेस्ट फॉर द प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी, तो वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, क्योंकि इसमें अभी आपका काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, सेंड करने में भी दिक्कत आएगी. थैंक यू.